فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثديين وإن له جزيرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے پوروں کے بارے میں بیان کر رہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو عیالی بڑے بہترین طریقے سے پیش آنے والے اپنے عہد و عیال سے مراد ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیسہ معاملہ کرتا رہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کاریوں باہر کے لوگوں سے بہتر ہے. گھر میں سال پاتران گھر میں معاملات صحیح نہیں ہے. کوئی انسان سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے معاملات کمی رکھے. بعض لوگوں میں یہ نگاہ ہے کہ گھر کے کئی بیٹے ہیں لیکن کسی بیٹے پر زیادہ توجہ ہے, کسی پر کم توجہ ہے. یہ آپ سنت کے مطابق نہیں ہے بلکہ آپ اپنے مطلب کے مطابق. اولاد سب برابر ہے, ہاں وہ بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو, سب کے حق میں آپ ایسا نہیں کریں جیسا کہ شریعت کے قانون ناقص کیے. سب سے بہترین زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَمَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ کہ اگر کچھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا پر عمل کرو, طریقے پر عمل کامیاب ہو جاؤ گی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا کہ آپ نے ہر لائی ہر میدان میں کام کیا, ہر ایسی ویسی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی آپ کی. آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے مسیلمہ بن کذاب نبوت کا دعویٰ کیا, سمجھے, جھوٹا نبی بناوے. کب دیکھا کہ لوگ وہ طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ جگہ کا بادشاہ تھا, اب وہ خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ نبی رہیے ایک سال عمل نبی رہتے گمی. تم طریقے سے کہا کہ ایسا اگر نہیں ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں آپ نبی رہے اور ادھر ہم نبی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے جواب میں لکھا کہ مسیلمہ میں کو آخری نبی ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تو جھوٹا ہے کذاب ہے, تو جھوٹا اور کذاب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط روانہ کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے قاصد کی تلاش کی. آپ نے موقع کہا کہ کون ہے جو اس خط کو لے کر کے جائے. حضرت حبیب رضی اللہ کا اعلان کرے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دے جاؤں. رجل کھا رہے تو یہ بات بولے تو پرو کھا ہی رہے, پول لے کر کے جائے گا اس کو. حضرت حبیب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا مسیلمہ کے پاس. لپا کیا ہوا ہے, مسیلمہ تو کذاب ہے, جھوٹا ہے, دے جانے والے کو بھی دے گا کا, وہاں جائیں گے کو مار دے گا. اب حضرت حبیب کے منہ سے قدور گر گیا صحابہ کے جتوں پر پا. اب صحابہ کہتے پہلے قدور کو کھا دے بات کرنا. وانا بول کہا کہ میں اس لیے پہلے بولا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدا لگائے تو میرے سے پہلے کوئی جواب نہ دی. لبیک سب سے پہلے میں کہوں کہ میں رسول سے اتنا محبت کرتا ہوں کہ کوئی نبی میں اپنے رسول کو مان رہا ہوں, مسیلمہ کو میں بھی ہوں مانتا ہوں کہ اس لیے میری خواہش کر جائے کیونکہ حق کے اندر میں رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ حبیب معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. قادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماری ہوں, میں حبیب ہوں, آپ پہ محبوب ہے. سمجھے, مجھے آپ اتنے محبوب ہے کہ آپ پہ نظر میں اور آپ کی محبوبگی میں اگر کوئی دوسرا محبوبت کا دعویٰ کر دے نہ کسر طرف کر دیں. ابھی اپنے قافلے سوائی کو تیار کر کے مسیلمہ کے خاص پہنچے. تلوار لیے ہوئے مسیلمہ کے دربار میں وہ ٹھاٹ بات سے پہنچے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جس کو پڑا دل رہی طاقتور چاروں طرف سے کھو گیا مسیلمہ کا. اور وہ ٹھیک آنگن میں جا کے تلوار گاہا اور کہا کہ مسیلمہ پوچھتا ہے کہ کون ہو. کہا پھر محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں, میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں, آیا ہوں. کس لیے آئے ہو؟
कहा कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खत भेजा था, उसके जवाब को मैं लेकर से आया हूँ। वो खत पढ़ा ताकि हबीब, उनको मालूम है कि इसमें क्या लिखा हुआ, कहा तो मालूम ही है, और मैं अब से पीछे अपने 3 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 3 साल 5 साल के साल है और 3 4 2 12 13 साल की उम्र के बच्चे, उनको भी छोड़ करके आया। समझे, मैं अपने महबूब की मोहब्बत में आया हूँ, सबको छोड़ करके मैं अपने महबूब की मोहब्बत में आया हूँ। ये मालूम है कि मेरा अंजाम क्या हो, ये कुकर ना करो, मेरा मकबूब जो है वहां, उसके लिए मेरे वो बच्चे क्या, जो मेरा सारा खानदान कुर्बान। इसमें लिखा हुआ है तू लूटा है। मुसैलमा को अभी कहते पूछा, मुसैलमा ने कहा कि हाँ पुकार भी, कि एक हाथ को कार हो, और तलवार से उसने एक हाथ को काट दिया। अब पूछता है मुसैलमा कि आप तुम क्या कहते हो? कहा कि आपको और मैं पहले से भी ज्यादा अकल, कि मैं वहां से जब निकला हूं तो तुमको अंदाजा है कि मैं किस वजह से निकला हूं। आते कहा उसने जिस्म को काट दिया गया, समझे, और उसे गर्दन को बढ़ा दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मुकब्बत में दिल से नहीं निकाली। तुम्हें कुतुबत पर सबसे पहले कुर्बानी उम्मीद की है, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए अपनी नबूवत में कि अल्लाह के रसूल आठवीं नबी है, उनकी जान सबसे पहले कुर्बान देखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एतबार से ऐसे कि आखिरकार सहाबा क्यों ऐसे, आप गौर कीजिए, जो हम मोहल्ले में रहते हैं, हमसे 10 आदमी कुछ नहीं हो पाता है, हमारा तो तरीका कहता है 4 चरण हमारे कितना भी होगा कि हम 10 आदमी को कुछ नहीं रह पाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7-8 साहब किराम पूछते, आज हम भी तो सब कुछ है, समझे, देखे नहीं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, ना आपके साथ कभी रहे, न मदीना गए, समझे। अब भी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है ताकि अशबार हो जाती, हम की तरफ जाता, मोहब्बत हुई। किस लिए मोहब्बत है कि आपकी आहत ऐसे की, तरीके ऐसे थे, आपका रहन सहन ऐसा था, घर वालों में आप ऐसे रहते थे, ये सबको हमने सुना है, पढ़ा है, इसलिए मोहब्बत सबसे ज्यादा जागी। और क्यों न दाद सी, कितनी है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे, बेटे तो 3 थे आपके, लेकिन एक बेटे हजरत मारिया पिया जो आपकी बादी थी, इनके बतन से एक बेटा हुआ जिनका नाम हजरत इब्राहीम था। सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम को दूध पिलाने के लिए मदीना में उचले हिस्से पर, मदीना एक जगह है कुछ हिस्से पर, और वहां जिहाद में आप तलाशहन हुए थे अपने बेटे दूध पिलाने के लिए, और दूध पिलाने मादी कहती थी तो उसके थर में कारोबार होता था तो दोहे की धरती रही हो, जब भी होता तो कोयले से कुआं चारों तरफ फैल गया था। हजरत अमरू सही कहते हैं कि मैंने हजरत अनस से सुना, ये कहते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा और कम अबिलायाल अपने अहल वयाल में सबसे ज्यादा रफत करने वाले थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल इब्राहीम इब्राहू, आप बेटे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को मुस्कन बयान की आबाली और मदीना के दूध पिलाने के लिए मदीना के सूसे में मेरे पका रहे तलीपू वनक मराहू उपयुक्त की उठबई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गामिर बगाहे वहां जाते थे, उनसे मिले, अपने बेटे से मिले। अरे जो बोले सब सोचे थे कोई पीने की उम्र की वकान तले को हजरत अनस कहती ने कि मैं भी एक रात के पास था, फयुदती उलबई, और मैं गाफिल हुआ, वही न और दापिल होते ही जैसे दापिल हुआ को घर धुएं से भरा हुआ। समझे, पूरे दोपहर कुरान एक सूरह है, उस दुकान के माने ही आता है, दुकान के माने धुआं के, यहाँ है नयुद्दापानु के भूले भरे हुए के वका नजीरनु कई न पैरा कुदबू, और वो काम क्या करता था, लोहे का कारोबार करता था, लोहा बनाता था, पर युकब्बिरा की मैया देव कलांग कलम मातुआ की। फिर वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कि वो धुएं से तरे आए, बल्कि वो धुएं के अंतर भी गए। ये नहीं सोचा कि ये बड़ी जो आग का घर है,
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटे की मोहब्बत में, अपनी औलाद की मोहब्बत में उतने बर्दाश्त किए। और ऐसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मिस्कीनों के साथ अच्छाई का मामला किया करते इसमें। अल्लाह के अनस कहते हैं कि सुमयर भी पादानो कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुमार से आए। फदर तुवफ़ी इब्राहीम, फिर हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी देते थे सब बदतमीजी में इंतकार कर गए। तो मुशरिकी यहूद मजाक उड़ाने लगे कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ल नहीं चलेगा, नस्ल नहीं चलेगा। नबूवत आपकी जब तक कि आपकी जिंदगी है तब तक कि नबी नबूवत है, आप दुनिया से रुखसत बुलाएंगे तो तारा आपका नबूवत का कितना खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा रहा हूँ इंतकार कर गए। तकरीबन उस कीले के ज़माने में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न इब्राहीम इब्नी व इन्नहु माता तिस्तिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि मेरा बेटा इब्राहीम ऊँट पीने वाला था। व इन और अल्लाह ताला मेरे बेटे को जन्नत में वो दूध पिलाने वाली औरत का इंतज़ाम फरमाए। समझे, दुनिया में तो एक खिलाने वाली थी, लेकिन अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में तो दूध पिलाने वाली औरत का इंतज़ाम किया है। तो इसी अंदाजा हुआ कि अगर किसी ने ईमान वाले ये धर्म जो बच्चे इंतकाल करता है दूध पीने की हालत में, तो अल्लाह उससे वहाँ इद्दा कर देती है। समझी, माम के लिए इतना हो जाता है पीने का कि किस चीज से इसकी परवरिश होनी थी उस चीज का अल्लाह इकराम हजरत इब्राहीम का किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वान अली कान याकुब्बल कुलान खैबु कान रमाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन ये यहूदी फलाने नाम का था, तब निकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरानी फबक़ावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ पर्न दिए थे और वो वापिस आया और कहा देर रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरा पर्न यानी दीनार वापिस कीजिए। फ़क़ाल लहू या यहूदी मा इंदी मा पीका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ यहूदी मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। क़ाल फ़इन्नी ला उफ़ालिकुका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है कि ऐ मोहम्मद अगर आप नहीं देंगे, जब तक के नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। समझे, जब तक कि आप मेरे माल को नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता को वो दे ही दे। सुन नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिए। कहते हैं कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है देने के लिए। बिनार क्या कि मेरे पास अगर तो केवल में कुडू होता, वो निकादी होते, कपड़े होते, केवल रसूल को वो दे देता। लेकिन मेरे पास ये सब मीनार के अलावा ये कोई चीज भी नहीं है कि जो मैं तुमको दूं। पतपा खत्ता कमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है तुम बैठते हो तो तुम क्या चाहते हो, नहीं जाओगे तो मैं जो तुम्हारे सामने बैठ जाता। तुम अगर कहोगे तो चले जाइए तो मैं चला जाऊंगा, मगर तुम नहीं कहोगे तो मैं बेकारी रहूंगा। मतलब मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, इस कर किएगा भी। इधन अज ही सुमा कपजल समातून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बैठ गए। फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसन व बगरी वगैरह सारी आखिरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के सामने बैठे हुए या भी इतनी देर तक के बैठे कि ज़ोहर की भी नमाज पढ़ी। उसके बाद असर का भी वक्त हो गया, मगरिब का भी वक्त हुआ, वह ईशा और ईशा का भी वक्त हो गया और वदा था। और पता क्या फजर तक के बैठ रहा, फजर की नमाज में उसके सामने ही बैठकर से कही वकार अक़ाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहद्ददूनहु व यतवाअदूनहु तफ़क़िन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लज़ी यसरऊन बिही फ़क़ाल या रसूलल्लाह। और सहाबा किराम जब इस माजरा को देखे तो उसको धमकाने लगे। समझे, इशारे नहीं
ऐसे दूसरा सब बैठे होगा कर रहा है तो देखते हैं सारे ने साहब को कर से, लेकिन हुजूर के सामने ढूंढ नहीं रहे। अब वो धमकी दे रहा है, दूसरा सब लेने पड़ गए। अब दूसरा सलाब के पेड़ तो गुस्सा जाहिर हो मर गए कि रसूलुल्लाह पर लुसान है। फकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदा रब्बी नाज़रम मुआदिदन वतयहु फलम्मा तवज्जल अन्नहार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं कि मेरे सहाबा, मुझे अल्लाह ने मना किया है जिससे मुआहिदा हो जाए, ये दिन का मामला हो जाए, उनके साथ दूर कर। कहाँ पे आया मांगने के लिए? तुमने मैं उससे साथ दूर नहीं कर सकता, जून करूंगा तो मैं जालिम हो जाऊं। तुझे नरमी का मामला चल रहा है। फलम्मा तवज्जल अन्नहार क़ाल यहूद अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। वो यहूदी जब इस हालत को देखा तो कल होकर के कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह जी को कोई इबादत के लायक नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और आप अल्लाह के रसूल। इस आदत को देख करके, इस तरीके को देख करके वो ईमान लिया। वो कहते रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे पास बहुत सारे माल हैं, समझे, और इस खुशी में, इस्लाम लाने की खुशी में मैं उस माल का आधा हिस्सा सदका कर देता, अल्लाह के रास्ते में सर कर रहा हूँ। अल्लाह के हुकुम पाई तभी का इरा लिअनजुरा इना नातद नाती का तित्तबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपके साथ ऐसा किया, इसके पीछे एक राज ये था कि मेरी किताब तौरात में लिखा हुआ था कि एक आखिरी नबी होंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, अब्दुल्ला के बेटे होंगे, मक्का मौलिद हो मक्का, और मक्का मुकर्रमा में पैदा होंगे, वो मुहाजिर हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आप मदीना में हिजरत करेंगे, वह बितीबती व मुल्कुहु बिशाम लैसा बिफज़ी वला वलीज़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आपकी हुकूमत यानी इस्लाम शाम से जो दिल फैला हुआ होगा, तुम्हें शाम तक इस्लाम फैला हुआ होगा, और आपके मानने वाले होंगे, वला दमीज़ी, और ना आप गुस्सा करने वाले होंगे, वला सक़ाबिन किलासवा, और ना आप पादान को से को मेहमान होंगे। मेरी काम भी दिखा हुआ है तौरात में, मुझे कह रहा है वला बुतर अब ये पक्षी, और ना आप बहस कलाम करने वाले होंगे, वला कौलु अफ़ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। वो क्यों पैसा है जो मैं दवा से देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत से लायक नहीं, और यकीनन आप अल्लाह के रसूल है। वहादा हमारी बात को मकी इमा अल्लाह व कान यहूदी कतीरन अलमाती की दलाई हुआ। वो यहूदी ये सब तमाम बातें कहने के बाद कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बहुत सारा माल है। वो यहूदी मालदार था और अपने मालने से आधे से ज्यादा हिस्सा इस्लाम के लिए पद कर दिया, मुसलमान हो गए। मारते पीते तो सो क्या होता, वो और ज्यादा गुस्सा होता, भागता वहां से, और इस्लाम का नफरत होती। लोग इस्लाम को नफरत क्यों करते हैं आज? क्या हमारा तौर तरीका अलग हो गया है? क्लास गलत नहीं हुआ, हमारे तौर तरीके गलत हो गए। एक आदमी दवार आया, मस्जिद में पेशाब कर दिया करे थे साहबा किराम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब साहबा किराम गुस्सा गए, क्या पेशाब मरते दो बारे में आ गया, घुस गया, तो सब कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कह लो देखो वो देहाती है, को मालूम नहीं, ये क्या जानेंगे कि मक्तिस क्या है, लक्ष्य क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर जाओ वसूल कर लो, वहां चल पर आए आप के मार देती कर दिए, सिख तंदी कर दिए, बदर चचरे ही पातरी भी मसीह है कि शाब्दी किया जाता। वो कौन मुसलमान मुझे कौन मुसलमान? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में प्याती आया, मेरे घर का खाना खा गया, समझे, वो यहूदी था, समझे, आप तो परेशान करने के लिए पूरे घर का खाना खा लिया, इकलक खाया, और रात बैठे कला भी इतना कर लिया अपना अपना फिक्र में, यानी वहां जान तो आता।
اور رات میں چپٹی سے بھاگ گیا. اب جب گیا تو اس کی تلوار چھٹے اسی جگہ. تلواروں کو قیمتی سمایا تھا جس وقت علی بندوق پھینک چتر ڈرواتا اتنے تلوار میرا کیا تھا. اب وہ تلوار دینے کے لیے سرماتے نہیں آیا تو دیکھا کہ آپ پر آپ نہیں تب طاقت ہے. اسی وقت کہا سب لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.